दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुत्तस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. अर्जुन भगवान कृष्ण કહે છે દ્રષ્ટેવમ સ્વજનમ કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણ મારા સ્વજનોને જોઈને, યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ, લડવા આવેલા મારા સ્વજનોને જોઈને, ગાંડીવમ સંસ્કૃતે હસ્તા, મારું ગાંડીવ હાથમાંથી સરકી રહી છે, ત્વક્ચૈવ પરિદહ્યતે, મારી ચામડી બળુબળું થઈ રહી છે, મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ, મારું મોઢું જે છે સુકાઈ ગયું છે, વેપુત્થસ્ય શરીરે મે, મારા શરીરના રૂમટા, ચામડીના રૂમટા ઊભા થઈ ગયા છે અને આખા શરીરમાં રોમાંચ વહી ગયો છે. ન ચ શક્નોમિ અવસ્થાતો, હું ઊભા રહેવાને માટે શક્તિમાન નથી. હું એટલો બધો ડગી ગયો છું કે ઊભો પણ રહી નથી શકતો. ભ્રમતી વચ મે મન, મારું મન ભ્રમણ કરી રહ્યું છે. તો ભગવાન જ્યારે રથની વચ્ચે સ્થાપના કરી ત્યારે અર્જુને પોતાના સ્વજનોને જોઈને જોયા સામે, તો અર્જુન જરા ડગી ગયો. ને અર્જુન પોતે જ ઘણીવાર છે ને કે આપણે આપણો ડિફેન્સ કરવા જઈએ પણ આપણા ડિફેન્સમાં જ આપણી વીકનેસ બહાર આવતી હોય. આપણા પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાંથી જ આપણી પોતાની વીકનેસ બહાર આવી જાય છે. તરત જ અર્જુન ભગવાન કે જે આ તું આ માયામાં ફસાયેલો છે, સ્વજનની જોડે તારું એટેચમેન્ટ છે, એટલે આ તારો વિષાદ છે. એ પોતે જ કહે છે દ્રષ્ટવેવમ સ્વજનમ કૃષ્ણ, આ મારા સ્વજનોને જોઈને મને આ દશા છે. એને જાણે મેલેરિયા થઈ ગયો છે, મારું શરીર કાપી રહ્યું છું, ઊભા નથી રહેવાતું. પણ કૃષ્ણ જાણે છે એટલે કૃષ્ણ એને સાયકો એનાલિસિસ કરશે. કૃષ્ણ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ સાયકોલોજિસ્ટ એવર happened on the planet. He is far beyond Sigmund Freud or Adler or many of the modern day science. એ લોકો ઘણું કામ કર્યું. સિગમન્ડ ફ્રોઈડ did a lot of work, but એ મનની સીમા પર અટકી ગયા. કૃષ્ણ મનની સીમાથી આગળ આત્મા અને પરમાત્મા તરફ જાય છે. And Krishna agrees that until the time you are talking about mind, we agree with you. I agree, your conclusions are very good. You've done a lot of work. પણ તમે ત્યાં અટકી ગયા છો. હું તમને એનાથી આગળ લઈ જવા માંગુ છું. મનથી આગળ બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી આગળ આત્મા અને આત્માથી આગળ પરમાત્મા. મનુષ્યની બહુ મોટી પોટેન્શિયાલિટી છે. મન પર અટકી જશો તો તમે ઘણું પછી સિગમન્ડ ફ્રોઈડ when time he was dying, he said at the most human beings can be made less unhappy, but they cannot be made happy. That was his kind of conclusion. કે મનુષ્યને બહુ હતું એને દુઃખ ઓછું કરી શકાય પણ એ દુઃખી તો રહેશે જ. જ્યારે કૃષ્ણ, બુદ્ધ, મહાવીર, જીસસ કહે છે કે there is a possibility કે તમે સુખમ અક્ષયમ વસ્તુ પરમ આનંદ તરફ તમે જઈ શકો એમ છો. ભગવાન કહે છે બાહ્ય સ્પર્શેષુ અસક્તાત્મા વિંદતી આત્મનિ યત સુખમ સબ્રહ્મ બ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમ વસ્તુ. મનુષ્ય પોતાના સચિત અને આનંદ સ્વરૂપને પામી શકે છે. એ હોપફુલી જો સિગમન્ડ ફ્રોઈડે જો કદાચ એના હાથમાં ગીતા આવી ગઈ હોત, because he was very unbiased person, he was very extremely intelligent person, એ જો કદાચ આવી ગઈ હોત તો કદાચ એણે આગળ પ્રયાણ કર્યું હતું. જો બુદ્ધ એમના હાથમાં આવ્યા હોત કે મહાવીર હાથમાં આવ્યા હોત તો he would have gone far ahead than what he could have. So ભગવાન અહીંયા જુએ છે કે એ પોતે જ કે છે મારા સ્વજનોને જોઈને, મીન્સ માયાને કારણે દુઃખ છે. એવું નથી, ઉપરથી એમ લાગે છે કે અર્જુન ધર્મની વાત કરે છે અને કૃષ્ણ એને જબરદસ્તી યુદ્ધમાં ધકેલી રહ્યા છે. પણ કૃષ્ણ એને જે હિંસાનું મૂળભૂત કારણ જે છે મમત્વ, એમાંથી જ બહાર કાઢવા માંગે છે. ઉપરથી એમ લાગે છે કે અર્જુન હિંસાથી ભાગી રહ્યો છે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ જેની એની સાયકોલોજી જાણે છે, એનું મનોવિજ્ઞાન જાણે છે, એ જાણે છે કે એનું મમત્વને લીધે ભાગવા માંગે છે અને મમત્વ જ હિંસાનો આધાર છે. એટેચમેન્ટ ઇઝ ધ રૂટ કોઝ ઓફ વાયોલન્સ. અને અર્જુન એટેચમેન્ટને લીધે ભાગી રહ્યો છે, એ એકચ્યુઅલી
હિંસાથી જ ભાગી રહ્યો છે, ના એકચ્યુઅલી અહિંસાથી ભાગી રહ્યો છે. એટલે જો આજે રસ્તા પર કોઈ ગમે તેમ વાતો કરતા હોય, ગાળો બોલતા હોય, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ, આઈ વિલ જસ્ટ લિસન એન્ડ ક્વાઇટલી વોક અવે. ઓકે, પણ ત્યાં જો મારો સન ગમે તેમ બોલતો હોય તો મે બી આઈ વિલ ગો ધેર, અને એને લીધે કદાચ હિંસા થવાની સંભાવના છે. આજે મારા મકાનમાં કોઈ ચોર ઘૂસી આવે તો આઈ મે ગો એન્ડ સ્ટાર્ટ ફાઇટિંગ, પણ 10 ઘર છોડીને કોઈ મકાનમાં ચોર ઘૂસી હોય તો બહુ તો હું પોલીસને ફોન કરીશ કે અહીંયા મકાનમાં, આઈ વિલ નોટ ગો. વિષાદનું કારણ, દુઃખનું કારણ, હિંસાનું કારણ મમત્વ છે. એટલે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં પણ, સોરી આઈ સ્ટાર્ટેડ સ્પીકિંગ ઇન ગુજરાતી, ઇવન ઇન ગુજરાતી દેશે જળ જમીન ને ચોરું હોય ત્રણેય કજિયારા છોરું. जब तक यहाँ मालकियत है और संग्रह है तब तक हिंसा अनिवार्य है. सो ममत्व ही हिंसा का आधार है. तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन ममत्व में है, इसलिए हिंसा से ऊपर से ऐसा लगता है कि हिंसा से भाग रहा है, लेकिन वो हिंसा की ओर ही जा रहा है. इसलिए भगवान कहते तुम्हें भागना नहीं है, अपना स्वधर्म निभाओ. और अर्जुन को विषाद हो रहा है, दुख का कारण माया होता है. जहाँ भी दुख है वहाँ माया उसका आधार होता है. Show me, somebody wrote, I was listening on NPR, somebody presented, somebody has written this poetry. Show me a river that never flows. If it is not flowing, then it is not a river, then it is a pond or a lake. Show me sunrise that come from the west. There is no sunrise coming from the west. Show me a virgin in a maternity home. That's not possible. A virgin would never be in a maternity home. No? Or show me a woman who has never fallen in love. One way or other, a woman or a man has fallen in love in his or her lifetime. Similarly, our people say, ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करूं और दुख नहीं होए. Show me a way. Show me an intelligently contrived scheme of plan. Show me a very thoughtful plan that if I attach and I still don't invite misery. So desire is the cause of misery, Bhagavan Buddha said. Desire is the cause of rebirth. Desire is the beginning of कामना से ही सभी कुछ होता है. ध्यायता विषयान् पुंसः, कृष्ण कहते हैं, संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणयः. सो विषाद का आधार ममत्व है. और पहले अध्याय का विषाद योग का है. हम सोचेंगे विषाद को योग क्यों कहा है? दिस इज स्टूपिड. विषाद को योग हो सकता है, लेकिन उसमें कारण है. बहुत सोच विचार करके आत्मज्ञानी व्यक्तियों ने, पंडितों ने कहा कि अर्जुन विषाद योग. जब इंसान का विषाद होता है तो बहुत, जब विषाद होता है, जब इंसान बड़े बड़े विषाद से घिर जाता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो जाती है. या तो वो आत्मघाती हो सकता है, बहुत जब विषाद होता है इंसान आत्मघात कर देता है, या वो आत्म परिवर्तन में जा सकता है. दिस इज अनदर डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. आत्मघात वो तभी जाता है जब अहंकार बच होता है, तब इंसान आत्मघात करता है. देखो, जो इंसान आत्महत्या करता है हमें उसके ऊपर दया आती है, लेकिन आत्महत्या वही इंसान करता है जिसका अहंकार बड़ा सघन है. वो कहेगा इसी लड़की के साथ मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा. लेकिन जिसका ईगो बहुत स्ट्रांग नहीं हो गया, ठीक है अभी उसकी मर्जी नहीं है, तो हु एम आई टू फोर्स हर. He will think on those lines. He will be softer. ठीक है, प्रकृति ने ऐसा चाहा है कि नहीं शादी हो, उसकी भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, लेकिन कानून बीच में आ सकता है. मेरे बच्चे बीच में आ सकते हैं. जगत में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है. तो कई बार आत्महत्या करने वाला इंसान कहना यही होना चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँ. सम पीपल इवन थ्रेटन कि ऐसा नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर दूंगी या कर दूंगा. There was a judgment in the Madras High Court that threat to commit suicide, and if you force somebody to enter into a contract, then Madras High Court said that contract is null and void, because that contract is entered under coercion. It is like somebody is putting a knife. कोई आपके गले पे
छुरा रखते कहते साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज आई विल किल यू और आई विल किल माई सेल्फ। एंड द गॉड सेड बोथ वेज, इट इज कोवर्सन, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो आत्मघाती इंसान कई बार बड़ा बड़ा अहंकारी होता है। तो विषाद में दो संभावना, एक है आत्मघात, दूसरी संभावना है आत्म परिवर्तन। तो अर्जुन के सौभाग्य से उसके सामने भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण उसके आत्म परिवर्तन में ले जाएंगे। पूरी गीता में कृष्ण का ये प्रयास है कि अर्जुन छोड़िए माया, छोड़िए संबंधों की जाल, ये सब चाचा मामा गुरु शिष्य ये सब संबंध संसार के, इस संबंधों की बदलियों में तुम्हारे आत्मा का सूरज कहीं ज्यादा देर ढक न जाए, उसका तुम ख्याल रखना। ये सब टेम्पररी है, काम चला हुआ है। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना है। इंसान का शुद्ध स्वरूप तो अकेला है, मैं चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। ये सब संसार के संबंध, पति पत्नी साला मामा काका चाचा भाई बंधु गुरु शिष्य, ये सब यहीं पे रहे, यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस संबंधों की बदलियों से आप आगे निकल जाओ। संबंध आवश्यक हो सकते हैं संसार में, आप पति हो पत्नी हो पिता हो माता हो, संबंध निभाने पड़ते हैं, लेकिन अंतस जगत में, आध्यात्म जगत में उसका कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्म जगत में तो आपको ऐसा ही सोचना है कि मैं तो साक्षी भाव में हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप तो आत्म स्वरूप है, मेरा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना है। ऊपर ऊपर से मैं पिता हूँ माता हूँ पत्नी हूँ बंधु सिस्टर हूँ, वो भी वो सब धर्म अपने निभाना है, लेकिन अंदर से तो आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ माय ओन कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण उसको आत्म परिवर्तन में ले जाएंगे, इसलिए उसको लोग ज्ञानियों ने कहा विषाद योग। तो कृष्ण जो है हिंसा का जो मूल आधार है ममत्व, उसके ऊपर घा करते हैं। क्योंकि ऊपर से हमें लगता है कि अर्जुन भाग जाना चाहते हैं, कृष्ण उसको जबरदस्ती युद्ध में हिंसा में घसीट रहे। भगवान कहते हैं ये कोई हिंसा नहीं है। अगर तू साक्षी भाव में आ गया, अगर तू समत्व में आ गया, तो हानि लाभ जीवन मरण यश अवजस दिन रात स्त्री पुरुष मोक्ष बंधन शुभ अशुभ सभी से परे होकर तू अपने साक्षी भाव में आकर अगर तू युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सो ये एस्टैब्लिश अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान करके लड़ेगा, तू अपनी कर्तव्य भावना से लड़ेगा। तो क्षत्रिय कुल में जन्मा है, क्षत्रियता तेरी रग रग में है, कुल में जन्मा है वो तो ठीक है, लेकिन तेरा प्रशिक्षण, योर ट्रेनिंग इज दैट ऑफ ए वॉरियर। तो लड़ने के सिवा तू रह नहीं पाएगा। और तुम्हारा धर्म है कि अगर ये लोग जीत जाएगा तो प्रजा का शोषण होगा। ये लोग जो दे आर काइंड ऑफ इविल पीपल, दे विल रूइन द पीपल, यू नो। तो तुम्हारा धर्म है उनका रक्षण करना ऐसे लोगों से। तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। ऐसा युद्ध जो है बहुत कम क्षत्रियों के सद्भाग्य में आता है। बहुत युद्ध आते हैं अनेक क्षत्रियों के सद्भाग्य में, लेकिन वो धर्म युद्ध नहीं होते। धर्म युद्ध तो बहुत कम लोगों के सद्भाग्य में। तो तू उससे भागता क्यों, इधर ही रहना है। सो न केवल कृष्ण अर्जुन को युद्ध में बटाए रखते, दबाए रखते, उसको अपने आत्मा में जाने के लिए उसको प्रेरित करते। Not only is not allowed to run away from the battlefield, but Krishna is also pushing him further inside his own self. तुम अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपनी स्मृति को लब्धवा करो, तो तुम अपने आत्मा स्वरूप को पालोगे। तो तुम समझ पाओगे कि ये तो सब ऊपर का ये शरीर है और कुछ नहीं है, सभी आत्मा स्वरूप है। और आत्मा तो अमर ही है, आप चाहे तो भी आत्मा को नहीं मार सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीर को मार रहे हो, और ये शरीर तो टेम्पररी है। Even while I am talking to you, my body is changing and your body is also changing. But you cannot quantify because your sense organs are so limited. आपकी इंद्रिय शक्तियाँ इतनी मर्यादित है कि जो एक क्षण में जो चेंजेस होते हैं वो आप पहचान नहीं पाते हो। कई बार हम किसी को देखते हैं 10 साल के बाद मित्र को, क्या हो गया, ये बाल सफ़ेद हो गए। फिर वो कहेगा तुम्हारे भी तो हो गए। हाँ, I didn't realize. Because we see ourselves every day, we cannot find that change. This is ever changing world. संसार यानी संसरति इति संसार, ever changing, ever dynamic. Heraclitus said that you cannot step in the same river twice,
because by the time you step in the same river again, the water has changed. The quality of water, the stream of water has everything. And one other person said, you cannot step into the same water, same river even once, because by the time you put the second foot inside river, things have changed. हमेशा सब कुछ परिवर्तन है. तो भगवान कहते हैं कि देखो अपना स्वधर्म निभाओ, स्वधर्म से मत भागो. स्वधर्म यानी तुम्हारा मूलभूत जो स्वभाव है, योर इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल टाइप, उसको फॉलो करो. Don't copy other people. You are talking like a Brahmin, but you are not a Brahmin by nature. He is telling me. प्रज्ञावादांश भाषा से वो बहुत डाई बात करता है, बहुत विजडम की बात करता है, लेकिन वो विजडम तुम्हारा नहीं है. तू शास्त्रों को कंठस्थ करके तोते की तरह बोल रहा है. तुम्हारा तो मूलभूत स्वभाव क्षत्रियता का है. लड़ देगा तो भाग भी जाएगा तो भी वापस आएगा. तो अपने स्वभाव से मत भागो. जगत में आज अधिकतर लोग दुखी है क्योंकि अपने स्वभाव में नहीं है. कोई डॉक्टर है प्रोफेशन से, लेकिन उसका अपना स्वभाव है कविता लिखने का. तो पूरा दिन मेहनत करके उसको घर आके कविता लिखने का मन होता है, और छोटी सी 2 लाइन की भी कविता लिख के उसको इतना आनंद मिलता है जितना 100 पेशेंट्स ड्यूरिंग द डे देख के भी यहाँ इतना आनंद उसको नहीं मिलता है. तो भगवान कहता है डोंट चीट योरसेल्फ, डोंट चीट योरसेल्फ, बी योरसेल्फ. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. डोंट कॉपी एनीवन एल्स. भागने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हारे स्वभाव को फॉलो करो. बी इंडिविजुअल, डेयर टू बी योरसेल्फ. आई हैव मेड एवरीबडी डिफरेंट. इस जगत में हर व्यक्ति अलग है, क्योंकि परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विराट है कि नेवर रिपीट्स द सेम मॉडल. ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैव कम एंड गो, बट ही हैज नॉट रिपीटेड इवन वन. दो व्यक्ति समान दिख सकते हैं. The 2 identical twins may look alike, but they are still different on many counts. In future, there may be cloned individuals. They may be exactly alike physically, but in terms of their inner self, their inner nature, inner psychological type, in terms of their inner spiritual elevation, they will be different. तो जगत वैविध्य से पूर्ण है. भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म पे पड़े रहो, और अपने स्वधर्म में रह के तो परमात्मा को पा सकते. तो भगवान कहते हैं अगर आप ब्राह्मण टाइप हो तो ब्राह्मण टाइप में रहो, क्षत्रिय टाइप है तो क्षत्रिय टाइप में रहो, वैश्य टाइप में हो तो वैश्य टाइप में रहो. और अगर आप शूद्र यानी सेवा धर्म आपको अच्छा लगता है तो उसमें रहो. उस अपने अपने धर्म करके, अपने अपने धर्म में निष्काम कर्म करके करते आप मुझको ही पालोगे, चाहे इधर से आओ या उधर से आओ. एंड दिस डिवीजन इज ओनली 4 बेसिक साइकोलॉजिकल टाइप्स. श्रीमद् भागवत कहता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं. एंड देयर वाज फ्रीडम टू क्रॉस, एंड इट वाज नॉट बाय बर्थ. चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से. तुम्हारे गुण कैसे और तुम्हारे कर्म कैसे, इसी हिसाब से विभाजन था. और विभाजन वाज नॉट कंपार्टमेंटलाइज. यू हैड फ्रीडम टू क्रॉस ओवर. सारे जैन तीर्थंकर जो हुए वो क्षत्रिय पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण काम किया. राम कृष्ण भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन वो भी जब गीता कहते हैं कृष्ण तो वो ब्राह्मण का ही काम करते हैं. परशुराम वॉज बॉर्न ब्राह्मण, उन्होंने क्षत्रियता का काम किया. तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. इफ देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, भगवान श्री कृष्ण वुड नॉट हैव हग्ड विदुर जी, हु वाज अ दासी पुत्र. भगवान राम वुड नॉट हैव हग्ड विभीषण, हु वाज इवन अ राक्षस कुल. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन एज सच. द डिविजन्स वेर हॉरिजॉन्टल, दे वर नॉट वर्टिकल. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऊपर है. तो भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में रहो. और भगवान कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू, यू ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू वांट टू रन अवे, एंड देयरफॉर यू आर फाइंडिंग रीजंस टू जस्टिफाई योर रनिंग अवे. यू नो, समटाइम्स वी डू रिवर्स रैशनलाइजेशन. इफ यू डिसाइड दैट you want to go to a particular place today, even if there are odd reasons, you will try to find, you will rationalize it, and then you do it. You know, आज नहीं जाना है अगर मंदिर में, तो you will find कि आज टायर शायद ठीक नहीं है, पंचर हो जाएगा. आज इंजन लाइट आ रही है, नहीं जाना है. आज शहर ठीक नहीं है, आज बहुत बारिश है. ये मंगलवार को क्यों रखते हैं, मुझे कन्वीनियंस नहीं है. और ये प्रवचन के बाद प्रसाद क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं जाता हूँ. और दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरा अध्याय तो मुझे मालूम है, मैं नहीं जाता हूँ.
You already decided and you will find reasons to justify it. कि आज मुझे बेबी सिटिंग करना है, नहीं जाना है. But at the same time, if somebody comes and says कि आज मधुर दीक्षित का शो है, जाना है, तो चलो चलते हैं. तो कोई आपको कि आप तो अभी बोल रहे आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, then you will justify that reason also. नहीं, मेरे पास ट्रिपल आई है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल करेंगे. See, you decided to go, so you will find reason. आप कहेंगे आपकी सेहत नहीं ठीक थी, तो नहीं मैं एडविल साथ लेके जाता हूँ. If there is a temperature, I will take Advil. So you will again rationalize कि जो निर्णय आपने ले लिया है उसको आप जस्टिफाई करें कि टेम्परेचर आ जाएगा, कि वैसे भी माधुरी को देख के टेम्परेचर आ जाएगा तो एडविल साथ ले लेगा. So Arjun is trying to, he has decided to run away, and then he says देखो इतनी हत्या हो जाएगी, इतने लहू में खरडाए हुए भोगों को मैं क्यों भोगूं, सब पुरुष नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां अकेली हो जाएगी तो भ्रष्ट हो जाएगी, फिर वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, फिर वर्ण संकर प्रजा होगी तो पितरों का तर्पण कोई नहीं करेगा, पितरों का तर्पण तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा. He goes on, he is spinning the wheel, लेकिन he cannot cheat Krishna. Krishna जी knows his basic core, क्योंकि ममत्व के आधार से वो भागने की बात. He is already decided, he is finding reasons to justify this. कृष्ण बड़े अटल मनोवैज्ञानिक है. कृष्ण कहते हैं तुम्हारे लिए भागना ठीक नहीं है, यहाँ एक खड़े रहना ठीक है. और अहंकार जो होता है, अहंकार जो होता है, he finds the extreme. See, at one point Arjun says it is better that I am killed rather than me killing them. See, there are two extremes. Instead of me killing them in the war, उनको मारने जैसा वो मेरी हत्या कर दे वो अच्छा है. ऐसा स्टेटमेंट उसने कभी कोई भी वॉर में किया नहीं था. पहले भी उसने युद्ध किए थे. Did he make such extreme statement? No, he never made such extreme statement. He said, ऐसे राज्य को भुगतने से तो मैं भिखारी बन जाऊं वो अच्छा है. अर्जुन मेकिंग इस तरह राजा बनने से तो अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं. So this is another extreme. राजा भिखारी, मारो या मर जाओ. अहंकार जो है हमेशा एक्सट्रीम पे जाता है, कभी बीच में नहीं ठहरता है. क्योंकि अहंकार जो है कहेगा या तो मैं सनातन मंदिर का प्रेसिडेंट बनाऊं मुझे, या तो मुझे मेंबरशिप ही निकाल दो. कई लोग होते हैं ना, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ नहीं तो मुझे कुछ नहीं करता, मैं चलता हूँ. पीपल लाइक दिस, क्योंकि बीच में जो है अहंकार की वृत्ति है. बुद्ध का एक नया शिष्य हुआ, वो पहले एक राजकुमार था, तो पहले बहुत भोग में था, शराब में था, सुंदरी में था, सब भोग उसके पास उपलब्ध थे, बहुत भोगी था. तो लोगों ने कहा बुद्ध को आप उसको शिष्य मत बनाओ. बुद्ध ने कहा फिक्र मत करो, मैं ये साइकोलॉजी को जानता हूँ. वो जब शिष्य हुआ तो ही वेंट ऑन द अदर एक्सट्रीम. लोग 2 दिन में एक बार लोग उपवास करते थे, एक बार करते थे, 2 दिन में एक बार उपवास करते, वो हर रोज उपवास करने लगा. लोग सीधे रास्ते जाते थे, वो कांटे वाले रास्तों से जाने लगा. वो सैया में सोते थे लोग, वो भुआई पे जमी पे सोने लगा. लोग 7 घंटा नींद लेते थे, दूसरे शिष्य 1-2 घंटा ही नींद ले लगा. ही वेंट टू द अदर एक्सट्रीम. महल में बड़ी सैया में सोता था, अभी ये जमीन पे सो जाता है, क्योंकि अहंकार से वो प्रूव करना चाहता था कि मैं भी सबसे बड़ा तपस्वी हूँ. बुद्ध एक बार आया उसके पास कि देखो तू ये काम कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता, तू जब राजकुमार था तो अच्छी वीणा बजाता था, अगर वीणा के तार अगर बड़े खींचे सख्त है तो कैसा संगीत बजेगा. तो उसने कहा तब तो संगीत बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है और कर्णप्रिय नहीं होता है. बोला ऐसा ठीक है, मैं वो बड़े ढीले छोड़ दूँ तो संगीत कैसा बजेगा. तो बड़े ढीले छोड़ देंगे तो भी संगीत बजता नहीं है, बड़ा बेसुरा आवाज आता है. तो वीणा के तार जो न बहुत ढीले न बहुत खींचे, ऐसे होने चाहिए. तो भगवान बुद्ध ने कहा आध्यात्मिकता की धर्म भी वही है. बहुत जास्ती मत करो, बहुत ज़्यादा उपवास भी मत करो और बहुत ज़्यादा खाना भी मत करो. युक्ताहार, कृष्ण भी यही कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति. मध्य में रहो. मध्य में रहना अहंकार से मुक्ति है. इफ यू आर ऑन द एक्सट्रीम्स, अतिशय भोग में, तो फिर मेरा अहंकार देखो मेरे पास इतना बड़ा मकान है, इतना हमारा बैंक बैलेंस है, मेरी माय वाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल लेडी, ये भी एक अहंकार होता है.
और दूसरा भी अहंकार, देखो हमने इतना त्याग किया है, इतना त्याग किया है, इतना त्याग किया है, हाँ मैं तो पूरा ब्रह्मचर्य में रहता हूँ, इसका भी अहंकार होता है। तो भगवान कहते हैं ये तो यू आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, राजा से भिखारी, या मैं मर जाऊं या मैं मर जाऊं वो अच्छा है, वो मुझे मारे वो अच्छा है, कृष्ण जानते हैं है ना। और विषाद जो है अर्जुन को हो रहा है, युधिष्ठिर को नहीं हो रहा है। हमें भी सवाल होता है कि होना तो युधिष्ठिर को, वो तो धर्मराज है, लेकिन इस जगत में ऐसा होता है ना, कई बार धर्म जो है हम ऊपर से उड़ते हैं, कई बार हमारी आस्तिकता होती है वो उधार की आस्तिकता होती है। युधिष्ठिर अच्छा इंसान है, नीति नियम में रहता है, लेकिन उसको he doesn't, his consciousness does not hurt. He goes by the laws of the land prevailing at that time. जब वो जो कानून पहले थे उसी कानून के हिसाब से जा रहे हैं। वो जुआ खेल सकते हैं, क्योंकि जुआ खेलना राजा के लिए अलाउड था। उन जमाने के कानून के अनुसार जुआ खेलना राजाओं के लिए, वो शिकार करने जा सकते हैं, क्योंकि शिकार करना राजाओं के लिए उनको उनको अनुमोदन था। उस जमाने का कानून के आप शिकार पे जा सकते थे। वो कहेगा स्त्री तो पति की चीज है, उसके ऊपर मालिक है, तो जुए में रख सकते हैं। दैट टाइम द लॉ अलाउड इट। तो जब जुआ हुआ तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे रख दिया। लेकिन जो धार्मिक इंसान होता है वो कानून से नहीं चलता है, वो अपने आत्मा की आवाज से चलता है। कानून अलाउ करेगा मुझे शिकार करने, लेकिन मेरा अंदर का आत्मा बोलेगा कि प्राणियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उनका शिकार करते हो। कानून तुमको अलाउ करेगा कि आप स्त्री को भी दाव पे रख सकते हो, लेकिन अंदर का आत्मा कहेगा स्त्री का तो व्यक्तित्व है, वो कोई वस्तु थोड़ी है, उसकी भी प्रज्ञा है, उसकी भी चेतना है, उसको दाव पे नहीं लगाया जा। जो धर्म वाला इंसान है वो अपनी आंतरिक धार्मिकता से चलता है। तो युधिष्ठिर जो है ऊपर ऊपर से धार्मिक है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। देखो आज का कानून क्या है, अगर मैं किसी चिकन को मार दूं तो कानून अलाउज मी, किसी बकरी की हत्या कर दूं, मैं गोट को मार दूं और मैं उसको खाने लगूं, कानून हैज नो प्रॉब्लम। बट a real religious person would not go by the law of the land prevailing at that time. जो कानून चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलता है धार्मिक इंसान अपने अंतरात्मा की आवाज से चल रहा है। ये कानून तो मुझे अलाउ करता है, लेकिन मेरा अंतरात्मा क्या कहता है। किसी प्राणी को मार के खा जाना क्या अच्छा है, आपका अंतरात्मा क्या बोलता है। कानून अलाउ करता है, समाज अलाउ करता है, सब समाज की व्यवस्था अलाउ करती है, लेकिन मेरा मन, मेरी चेतना क्या कहती है। तो अर्जुन को हो रहा है विषाद, क्योंकि अर्जुन अंदर आंतरिक चेतना से जी रहा है। इसलिए भगवान भी गीता जो है युधिष्ठिर को नहीं कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। ये भी सोचने जैसी बात कि अर्जुन को क्यों कहते गीता कहते हैं, युधिष्ठिर को कहनी चाहिए, वो धर्मराज है। कई लोग हमारे सांप्रत समाज में भी कई लोग ऊपर से धार्मिक है, ये अंदर से उनकी धार्मिकता नहीं है। ऊपर से हर रविवार को मंदिर में आते हैं या चर्च जाते हैं, नियमितता से ये करते हैं, भागवत कथा में they attend all those things, nice things, they do everything on the surface। सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, खाने से पहले मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन परमात्मा जो है अंदर से है, इट इज फ्रॉम विदिन। भगवान भाव का भूखा है, जब तक मन नहीं है परमात्मा में तब तक ये सब ऊपर की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मत भक्त भव, मत याजी माम नमस्कुरु, दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहण। एक कवि ने लिखा कि जो तुम्हारे पास जो धन था वो तो लक्ष्मी लेके चली गई भगवान, और तुम्हारा मन जो है वो तो राधा ने चुरा लिया है। तो मैं आपको क्या दूं, मैं अपना मन देता हूँ। दत्तम मनो यदुपते, मैं अपना मन देता हूँ। भगवान कहते हो जो मन से मेरे साथ जुड़ा है वही जुड़ा है। ऊपर से बहुत धार्मिकता हो सकती है, तो ऊपर से युधिष्ठिर धार्मिक हो सकते हैं, वो धर्मराज भी कहला सकते हैं, लेकिन शायद अंदर से अर्जुन ज्यादा धार्मिक है। इसलिए भगवान ने गीता अर्जुन, और भगवान कहते हैं भक्तों में सखा चेती रहस्य में, तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं तुझे ये गीता। मित्र तो युधिष्ठिर भी था, लेकिन अर्जुन भक्त भी था।
तो गीता समझने लेके हमें भक्ति भाव चाहिए। कोई भी बात आपको समझनी है तो थोड़ा प्यार से समझो, तो उसमें फर्क पड़ता है। इट मेक्स ए बिग डिफरेंस। If you want to learn from your father, you can learn in a very scientific and objective way. But if you love with total love, then जो पिताजी आपको बड़ी सटल बातें समझा रहे हो, तभी आप उनको प्यार से ही समझ पाओगे, नहीं तो पिताजी की बातें व्यर्थ हो जाएगी। You can call your mother wife of your father, but if you call mother a mother with love, there is a big difference. So महात्मा गांधी ने कहा गीता को भक्ति से पढ़ो। तो इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर को गीता नहीं की, भगवान ने अर्जुन को कही है गीता। तो पहला अध्याय जो है वो अर्जुन विषाद योग है। भगवान जानते हैं कि अर्जुन भागना चाहता है क्योंकि उसके ममत्व का आधार है आसक्ति। आसक्ति से ही विषाद होता है। आई हैव बीन टेलिंग दिस, गिविंग दिस एग्जांपल फॉर मेनी टाइम कि एक इंसान था, उसका मकान जल रहा था, तो अपना मकान जलकर देखते हुए वो रोने लगा। तो रोएगा क्योंकि मकान में इज लाइक यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट द होल एंटायर अर्निंग ऑफ योर लाइफ, तो वो रोने लगा। इतने में उसका बेटा आया, उसने कहा आप क्यों रोते हो, दिखता नहीं अपना मकान जल रहा है। अरे पिताजी आप फिक्र मत करो, हम लोग मकान बेचने की बात कर रहे थे, तो कल ही मैंने ये मकान बेच दिया है, तो ये मकान अभी हमारा नहीं है, जिसने खरीदा है उसका हो गया है, हमारा तो बैंक चेक मिल गया है। तो वो हंसने लगा। देखो पहले माया थी मकान में तो रोता था, अभी मकान में माया चली गई तो अभी हंसने लगा। बोला ठीक है अभी तो हमारा कुछ नहीं जाता है, नाचो। इतने में उसका लॉयर आया कि क्यों दोनों नाच रहे हो। बोला कि ये तो हमारा मकान नहीं, ये तो बिक गया ना, अभी जिसने खरीदा उसका है, हमारा नहीं है। तो लॉयर ने कहा कि लेकिन until the time the deed is transferred in your name, it is still your house। और मैं तुम्हारा मकान का जो डीड है मैं रजिस्टर करवाने गया था कल रजिस्ट्रार की ऑफिस में, लेकिन फ्राइडे इवनिंग थी, सब लोग जल्दी चले गए एंड द डीड हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, सो द हाउस इज स्टिल रॉ। तो फिर दोनों रोने लगे क्योंकि माया फिर से वापस आ गई। माया फिर से वापस आ गई, दोनों फिर से रोने लगे कि अपना मकान जल रहा है, अपना मकान जल रहा है। इतने में रजिस्ट्रार खुद जा रहा था, तो रजिस्ट्रार ने कहा क्यों रो रहे हो, क्योंकि अभी ये मकान हमारा चल रहा है और डीड रजिस्टर नहीं हुआ है। तो फिक्र मत करो, तो क्लार्क लोग चले गए थे, लेकिन मैंने वो क्लार्क के डेस्क से मैंने वो डीड उठा के मैंने रजिस्टर पर्सनली करवा दिया है। अब फिक्र मानो मकान तो अभी जिसने खरीदा, तो दोनों फिर से हंसने लगे। तो ये माया के होने से इंसान विषाद में होता है, माया के जाने से इंसान माया से मुक्त हो जाता है और विषाद से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के नारद जी भागवत में बार बार कहते हैं दुख का कारण है माया। माया ही जब हमारे जीवन में भी जब भी हम दुखी होते तो क्या होता है, माया के कारण दुख। कोई हमें दगा देता है, इफ फ्रेंड हैज चीटेड अस, इतना दुख नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड है दगा दे देगा। बट इफ योर ओन सन हैज चीटेड यू, इफ योर ओन डॉटर हैज चीटेड यू, इफ योर ओन वाइफ और हस्बैंड हैज चीटेड यू, आपको ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि सन डॉटर वाइफ और हस्बैंड के साथ हमारी माया ज़्यादा थी, हमारा अटैचमेंट ज़्यादा था, इसलिए इंसान बड़े विषाद में डूब जाता है। जो नज़दीक वाला जब तुम्हें हमें दगा देता है, ये जस्ट टर्न्स अराउंड एंड टर्न्स अगेंस्ट अस, फिर हमें बहुत दुख होता है कि जिनके लिए हमने इतना किया वही हमारे सामने आज लड़ने पैदा हो गया। जगजीत जी कहते हैं जिनके का खातिर इंजाम उठाए साहिल, वो भी पेश आए इंसाफ के साहों की तरह, दे आर ऑल्सो रूलिंग अगेंस्ट मी। जिनके कारण हमने इल्जाम ले लिए अपने सर पे, वो हमारे ऊपर इल्जाम देने के लिए आज हमारे पेश हो गए। तो ज़्यादा दुख हो जाता है। तो भगवान जानते हैं अर्जुन का जो दुख का कारण जो है वो विषाद है, वो माया है, ममत्व है, और ममत्व के कारण अर्जुन भागने की बात कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं, तुम ही खुद कहता है कि दृष्टवेम स्वजनम, तुम माया के कारण भाग रहा है, इन माया से मुक्त हो जा और समझ ले ये जो तू ये सामने जो है ये तो सिर्फ शरीर है, वो शरीर तो आज है कल नहीं है, तू अपना धर्म निभाओ। तुम्हारे सामने जो भी कर्तव्य करने को आ पड़ता है वो तुम्हारा फर्ज है करने को।
अगर आप जज, इफ यू आर ए जज इन ए कोर्ट, every time for a rape you are giving life sentence to all the accused. Now if it is your own cousin in the आरोपी के बॉक्स में अगर आपका खुद का कजिन है, खुद का सन है, तो यू कैन नॉट चेंज द स्टैंडर्ड. कृष्ण से दिस इज हिपोक्रेसी इन द पास्ट. पहले आपने युद्ध किए तभी तुमने सोचा नहीं था कि मेरे रिलेटिव है नहीं है. भेड़ बकरियों की तरह तूने काट दिए थे लोगों को, और अभी रिलेटिव्स है तो तू कहता है ये तो मेरे रिलेटिव्स, मैं किसको कैसे मार सकता हूँ. दिस इज डबल स्टैंडर्ड. कम आउट ऑफ इट. अपना धर्म नहीं पाओ. ये तुमने कभी ऐसा पहले तूने ये हिंसा की बात नहीं की थी. अभी तू धर्म की बात कर रहा है. ये धर्म की बात ऊपर की है, अंदर से नहीं आ रही है. ये ऊपर का धर्म है. स्वामी राम कहते हैं ये तो उधार की आस्तिकता है, कोई अंदर से निकला हुआ धर्म नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य निभा. सामने जो है दे आर ओनली फॉर्म्स, दे आर ओनली बॉडीज, डोंट वरी अबाउट. फिर दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये तो सब आत्मा स्वरूप है और आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है. भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें दूसरे अध्याय में कही है. दूसरा अध्याय जो है ज्ञान योग है, सांख्य योग. एंड सांख्य योग इज द अल्टीमेट. अगर कोई सांख्य योग को ठीक तरह से समझ ले, न केवल बुद्धि से लेकिन हृदय से, अपने प्राणों के प्राण से अगर वो समझ पाए, तो फिर गीता को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू आर डन विद इट. लेकिन अर्जुन फिर समझ नहीं पाया था, फिर और सवाल करता है, तो फिर भगवान को तीसरे अध्याय में जाना पड़ता है. क्योंकि भगवान बड़ी वैज्ञानिक बात कहते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है. न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर. आत्मा तो उसका जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसका ओरिजिन नहीं है, उसका कंक्लूजन नहीं है. ऐसा नहीं कि पहले था और अभी नहीं और बाद में नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं. ये तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मरने से आत्मा मरता नहीं है. तो फिक्र मत कर. तो आत्मा तो समयातीत है, काल से भी आगे है, इंद्रियातीत है, त्रिकालातीत है, वर्णनातीत है, त्रिगुणातीत है, समय और स्थान की सीमा को लांघ जाता है. और आत्मा पदार्थ नहीं है. आत्मा पदार्थ नहीं, पकड़ में नहीं आ सकता है. हमारी पकड़, इट इज नॉट मेजरेबल. तो भगवान कहते हैं, और जो संसार में जो कॉज इफेक्ट है, वो कॉज इफेक्ट की चेन में नहीं है. संसार में क्या होता है? कार्य होता है, कारण होता है. देयर इज कॉज एंड देन देयर इज इफेक्ट, देन द इफेक्ट बिकम्स कॉज एंड द कॉज इफेक्ट. ये जो संसार चक्र कॉज एंड इफेक्ट का चक्र है. लेकिन आत्मा और परमात्मा, दे आर बियॉन्ड दिस कॉजल चेन, दे आर टेंजेंट टू दिस कॉजल चेन. ये विश्व चक्र से बाहर है आत्मा और परमात्मा. तो भगवान कहते हैं तू क्यों ये पंडित जैसी बातें बोल रहा है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न विद्यते. जिस तरह इसी देह में इंसान को कौमार होता है, बचपना होता है, यौवन अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, मृत्यु होती है, इसी तरह जब एक देह से दूसरी देह में आत्मा प्रवेश करता है, तो इंसान को, जो अच्छा सोचने वाला इंसान है, वाइज पर्सन है, उसको इतना विषाद नहीं करना चाहिए. इट इज ओनली ए चेंज ऑफ शॉट. वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि दिय. जिस तरह एक वस्त्र पुराना हो जाता है तब इंसान नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जब एक शरीर पुराना पड़ जाता है तो आत्मा उसको छोड़ के नया वस्त्र, नया शरीर धारण करता है. इट इज लाइक चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स. व्हाई आर यू वरीड सो मच? क्यों इतना रोने लगा है? Because you have identified yourself with the body, that is the cause of misery. हमारे शरीर के साथ हमारी माया हो जाती है. फिर शरीर के साथ मेरी कार जुड़ी है तो कार के साथ माया है. उसी शरीर के साथ मेरी डिग्री, मेरा एजुकेशन जुड़ा है तो उसके साथ माया है. उसी शरीर के साथ मेरा धन जुड़ा है तो उसके साथ माया. उसी शरीर के साथ मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, these are all my extended ego. तो अर्जुन का खुद का ईगो है, फिर उसका गुरु, उसका चाचा, उसका मामा, उसका भतीजा, सारे संबंधी सब उसकी माया का एक्सटेंडेड ईगो का विस्तार है. भगवान कहते हैं
तुम्हारे शरीर पे ही, तुम देहाभिमान अगर छोड़ेगा तो ये सब एक्सटेंडेड ईगो भी खत्म हो जाएगा। इफ आई लिव माई ego, my own body ego, then all the things which are connected with the body will fall apart. अगर शरीर के साथ मेरी माया छूट जाए तो शरीर के साथ मेरी माया गाड़ी से थी, जॉब से थी, धन से थी, बेटे से थी, बेटी से थे, दादा से थे, जो सब जुड़ी हो वो सब अपने आप like a pack of cards, it will all fall apart. भगवान कहते हैं you attached yourself to the body, you identified yourself with the body. सी जब हमको भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी है। एक्चुअली कहना तो ऐसा चाहिए कि ऐसा लगता है कि यहाँ पेट में भूख लगी, ऐसा लगता है, क्योंकि आत्मा को कभी भूख नहीं लगती। जो इनर सेल्फ है उसको कभी भूख नहीं, उसको कभी निद्रा नहीं होती। जब निद्रा आती है तो हम कहते हैं मुझे नींद आ रही है। कहना ऐसा चाहिए अभी लगता है कि मेरा शरीर थक गया है, अभी शरीर को निद्रा आविष्ट हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हमारी भाषा कहती है मुझे नींद आ रही है और मुझे भूख लगेगी। इसका मतलब क्या है? व्हेन वी स्पीक दिस लैंग्वेज इट मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्व्स विद द बॉडी। जब मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो मैं कहता हूँ आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद माई बॉडी, आई हैव नॉट टेकन माई सेल्फ डिफरेंट देन माई इनर सेल्फ। तो भगवान कहते हैं जिस तरह वस्त्र का परिवर्तन होता है इसी तरह एक आत्मा, एक देह बदलती है, उसमें रोता क्यों है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्येव तत्र का परिदेव। पहले जो आत्मा है अव्यक्त होती है, फिर जब एक जन्म लेती है तो व्यक्त हो जाती है, एक देह में प्रविष्ट होती है तो व्यक्त हो जाती है, और जब देह छोड़ती है तो फिर आत्मा फिर से अव्यक्त हो जाती है। तो इसमें इतना रोना क्यों? तत्र का परिदेवना, ये तो चलता रहता है। पहले आप अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो जाओगे, फिर व्यक्त हो गए, ये तो संसार चक्र चलता रहता है। रोता क्यों है? तत्र का परिदेवना, क्यों रो रहा है? तो भगवान चारों ओर से भगवान जो है आत्मा, और कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत है उसका जो सत है वो हमेशा है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो कभी भी ना ही नहीं ऐसा नहीं होता है। और आत्मा तो सत है इसलिए हमेशा होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतम। असत का अस्तित्व नहीं है और सत हमेशा होता है। तो आत्मा हमेशा है और शरीर है और नहीं है। तो शरीर तो आता है जाता है, उसका तो सोचता क्यों है, क्यों रोता है इतना? वो तो आता है जाता है, अनेक जन्म हो चुके, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, रोने की कोई बात नहीं है। तो भगवान जो है आत्मा के बारे में अर्जुन को बहुत ठीक तरह से समझा रहे। और भगवान कहते हैं नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति भारत। नैनम छिन्दति शस्त्राणि, आत्मा को आप किसी भी वेपन से सेवर नहीं कर सकते हो, काट नहीं सकते हो। नैनम दहति पावक, आत्मा को आप जला नहीं सकते हो। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, वो पानी से आप उसे भिगा नहीं सकते। न शोषति मारुत, पवन से उसे सुखा नहीं सकते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है। अगर पदार्थ होता है तो आप उसको काट सकते हो, पदार्थ होता है तो आप उसको जला सकते हो। अगर आत्मा पदार्थ होती तो आपको पानी से उसको भिगो सकते हो। अगर आत्मा पदार्थ होती तो आप उसको पवन से, वायु से उसको सुखा सकते थे। लेकिन आत्मा पदार्थ नहीं है, तो भगवान कहते हैं नैनम छिन्दति शस्त्राणि, शस्त्रों से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी से उसको भिगोया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुत, तो आत्मा का विनाश तो सर्वथा असंभव है। भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं यू कैन नेवर डाई, योर इनर सेल्फ कैन नेवर डाई। योर बॉडी कैन कम एंड गो बट योर इनर सेल्फ इज देयर फॉर एवर। तो इवन इफ यू डोंट नो एस्ट्रोलॉजी यू कैन से जयदेव भाई यू विल डाई वन डे। अगर ज्योतिष नहीं आता है तो भी मैं कैसे एक दिन आप मरने वाले हो। दिस डेस्टिनेसी इज सर्टेन विदाउट एनी क्वेश्चन, इट इज सर्टेन। लेकिन कृष्ण कहते हैं आप कभी नहीं मरते हो, यू नेवर डाई। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो जस्ट इट एक्वायर्स द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म और योर डिजायर्स। जिस जन्म में आप डिजायरलेस हो जाते हो
जब इच्छा भी ही विगलित हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रहता, फिर से पुनर्जन्म होता नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। लेकिन मृत्यु सैया पे हमारी डिजायर हो जाती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है अगले जन्म में। तो भगवान कहते ठीक है, तुमकी आपकी डिजायर है तो आई एम सो मर्सीफुल, आई विल गिव यू अप्रोप्रिएट बॉडी टू एंजॉय दोस थिंग्स। बहुत खाने का शौक था, ठीक है आप पीक बन सकते हो, कुछ भी खाओगे पच जाएगा। इवन गंदा भी खाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल एंजॉय एवरीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज आर अवेलेबल, आई विल गिव यू ए बाइक विद 14 गियर्स, ब्रांड न्यू बाइक, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे भी आपकी इंद्रिय और विषय वासना जैसी थी उसी तरह का शरीर मैं आपको दूंगा। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अगले जन्म में ऐसे कान, ऐसे आँख, ऐसी जीवा, ऐसे सेंस ऑर्गन, ऐसे जनन इंद्रिय आपको दूंगा जिस तरह आपका अभी मन था उसी तरह। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, आप डिजायरलेस हो गए, आप बिल्कुल मेरे में समर्पित हो गए, और अंत काल पर आपको इच्छा याद नहीं आती है, डिजायर्स याद नहीं आती, लेकिन अगर आपको मैं याद आता हूँ तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं है, देन आपका कोई पुनर्जन्म नहीं। अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम। जो अपना देह मेरा स्मरण करता हुआ छोड़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन हम बहुत स्मार्ट है, हम कहेंगे अभी याद नहीं करते, मृत्यु सैया पे भगवान को याद करेंगे, अभी क्यों भजन करने का, अभी तो छोड़ो भगवान को। We'll tell him that shut up, let me do my thing. You sit in the passenger seat, let me drive the car. And shut up, don't be a co-pilot. I know how to drive. Don't bug me. We'll tell God like that. अंतकाले we'll take his name, लेकिन अंतकाल में भगवान का नाम आएगा नहीं। उसे जो जिंदगी भर किया है वही मृत्यु के समय पे मन में आता है, because it is a moment of truth. जिंदगी भर लोगों को गाली दी, अंतकाल भी आपके हमारे मुंह में गाली ही आएगी। I've seen people dying with bad words. They were cursing the nurses. ये नली डालिए, निकालो इसको। They were using bad words for the nurses. It happens. जो जिंदगी भर अभ्यास किया है वो भी मृत्यु के समय पे होता है, क्योंकि मृत्यु के समय पे आपकी चेतना मौजूद नहीं होती, आप अचेतन में चले जाते हो। तो अचेतन में वही बोलता है जो आपने जिंदगी भर किया है। अब अगर आप सपने में जो देखते हो, आपकी चेतन अवस्था नहीं है, सपने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो दिन भर आपने सोचा था किसी सुंदर स्त्री के बारे में या सुंदर पुरुष के बारे में, वही स्वप्न में आता है, फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर आप नहीं कह सकते कि अरे मैं तो साधु हूँ, ये सुंदर स्त्री नहीं आनी चाहिए, नहीं, जो सोचा था वही आता है। यू नो कंट्रोल ओवर इट। उसी तरह मृत्यु सैया पे आपका कोई कंट्रोल होता नहीं, आप अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। और जरूरी है, क्योंकि अगर आपका चेतन अवस्था हमारी बनी रहे तो मृत्यु बहुत पीड़ादायक बनेगी। इसलिए भगवान नेचर एग्जिस्टेंस हैज डिवाइस्ड ए वेरी नाइस वे कि हमें अचेतन अवस्था में लेके जाता है ताकि मृत्यु आसानी से हो जाती। इसलिए इंसान को पता नहीं चलता कि कब मेरी मृत्यु होगी। इसलिए आत्मा भी भटकती है थोड़ा, कि अपने शरीर में फिर से आने का प्रयास करती है कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू एंटर बैक इनटू माय बॉडी, लेकिन होता नहीं है। ये समझ जाता है कि ये मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि अचेतन अवस्था में मृत्यु हो जाती है। और जन्म भी अचेतन अवस्था में हो जाता है। हमें पता था मेरा जन्म हुआ, मुझे कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ऐसी इस तारीख को हुआ था, यहाँ हुआ था, और अब जब आप जन्मे थे तब ऐसा था, मुझे कुछ पता नहीं। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं, हमें पता नहीं चलता है, मृत्यु का भी हमें पता नहीं चलता है। तो भगवान कहते हैं ये सब काम प्रकृति का है, परमात्मा का है, समस्ती का है, ये तुम्हारा काम नहीं है। You cannot do it. If it is your work, you will mess it up. So, out of total wisdom, the nature has devised that at the time of birth, you have no control. You will not even know that you are born. And at the time of death, you will not even know that you are gone. तो ये सब बातें बड़ी गहन होती। जीवन की जो परम घटनाएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, प्रेम, सेक्स, everything is beyond our control. You may love a woman or a man, but it's not necessarily you will get him or her.
और हमारा जो स्वप्न पुरुष या स्वप्न स्त्री होता है वो स्वप्न में ही होता है, क्योंकि संसार में इतना सुंदर पुरुष या स्त्री होती नहीं, क्योंकि स्वप्न में हमारी कविता हम जोड़ते हैं इसलिए शब्द है स्वप्न सुंदरी, जो होती नहीं कभी वास्तव में या स्वप्न पुरुष जो कभी संसार में होता नहीं क्योंकि स्वप्न में हमारा इमेजिनेशन इज अ फुल स्विंग, इट गोज विदाउट एनी लिमिटेशंस। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु जन्म ये तो शरीर का होता है, तुम तो आत्मस्वरूप है। तो भगवान कहते हैं अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोऽयम् सनातन। अछेद्यो यानी उसका छेदन नहीं हो सकता है, अदाह्यो यानी उसको जला नहीं सकते, अक्लेद्योऽयम् उसको भिगोया नहीं जा सकते, अशोष्योऽयम् उसको सुखाया नहीं जा सकते, वो नित्य है, सर्वगत है, चारों ओर व्याप्त है, स्थाणु है मीन्स स्थिर है। शरीर कैसा है? पहले बचपना है, फिर कुमार अवस्था है, बाल्यावस्था है, कुमार अवस्था है, यौवन अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है, फिर मृत्यु। शरीर परिवर्तित है लेकिन ये स्थाणु में स्थिर है। आत्मा वैसी की वैसी। अचलो अनयम सनातनम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। आत्मा ऐसा है आपकी बुद्धि उसका चिंतन भी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा बुद्धि से पार है। अचिंत्योयम, वो विचार से भी परे। You cannot even think about it. It is beyond our thoughts. You can only experience it in ultimate meditation, or ultimate japa, or kirtan, or ultimate bhakti. अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् इदं विदित्वा नानु सोचितम् अर्हति। आत्मा बुद्धि ग्राह्य नहीं है, चिंतन में नहीं आता है, चिंतन से परे। The soul and the super soul are beyond the realm of mind and matter. They transcend beyond the barriers of space and time and even intelligence. तो भगवान या आत्मा जो है बुद्धि से नहीं मिलते, वो बड़ी भक्ति से और समग्रता से शरणागति से प्राप्त होते। क्योंकि बुद्धि से अगर मिलते तो आइंस्टाइन को मिल जाते, न्यूटन को मिल जाते, डॉक्टर राधा कृष्णन को मिल, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उनको मिल जाते, लेकिन उनको नहीं मिले। कोई मीरा को मिल गया, कोई नरसी को मिल जाता है। दिस इज फॉर मोस्ट सिंपल पीपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल। क्योंकि बुद्धि का भी अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट डॉक्टर और ग्रेटेस्ट दिस, तो भगवान नहीं मिलते। ही ऑलवेज रिमेन्स एट ए डिस्टेंस। तो भगवान कहते, बाद में भगवान कहे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवत् तदन्य शृणोति श्रुत्वा पीन वेदन चैव कश्चित्। आत्मा तो तुम्हारी बुद्धि में आने वाला नहीं है, और इसलिए कि वो बुद्धि में आता नहीं है इसलिए वो आश्चर्यकारक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, कोई लोग आत्मा को आश्चर्यकारक है ऐसा देखता है, कोई आत्मा आश्चर्यकारक है ऐसा सुनता है। आश्चर्यवत् तदन्य शृणोति आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम। कई लोग ऐसे हैं विद्वान लोग कि आत्मा तो आश्चर्यकारक है ऐसा उसका वर्णन करते हैं, और भगवान कहते हैं श्रुत्वा बिना वेदन। इतना बोलने के बाद भी आत्मा को ठीक तरह से कोई नहीं जानता है, केवल मैं जानता हूँ। केवल परमात्मा ही आत्मा को पूर्णतया जानता है। मनुष्य शरीर में होकर आत्मा को पूर्णतया जानना असंभव, until we enlighten ourselves and go beyond, until we are at the lotus feet of the Lord, until सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो भगवान की कृपा से हम अपने आत्मा को जान सकते हैं। वही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्दत्वा। एट द एंड ऑफ भगवद गीता ही सेज नष्टो मोह स्मृतिर्दत्वा तव प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम च। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरा स्वरूप क्या है उसका पता चला है। कैसे? तव प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा से। मेरे प्रयास से कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवान ने ये ऐसी आत्मा की बड़ी बातें की, और भगवान ने कहा कि तू अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जा। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जा। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सबको समान करके तो युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहता है यही योग है। तू जो है त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भव जा। वेद भी जो त्रिगुणता में, तुम्हें तो निस्त्रैगुणीय बनना है, और तुम्हें निर्द्वंद बनना है, दोनों द्वंद्व से परे। न सुख न दुख न हानि न लाभ न जीवन न मृत्यु न मोक्ष न बंधन न शुभ न अशुभ,
न गुरु न शिष्य, બધા सबसे परे हो के तू निर्बंध तब जब बनेगा और तब तुम आत्मवान बनेगा। और भगवान कहते हैं इसी तरह अपना कर्म कर, इस तरह अपना क्षत्रिय धर्म निभा। डोंट अटैच योरसेल्फ कि तू जीतेगा या हारेगा। भगवान नहीं कहते कि तू जीत जाएगा इसलिए लड़, भगवान ये भी नहीं कहते तू हार जाएगा इसलिए लड़, भगवान कहते हैं तू लड़, बस परिणाम की फिक्र मत कर। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में ही कह देते हैं कर्मयोग कर्मण्येव अधिकारस्ते। दिस इज स्टेटमेंट फ्रॉम सेकंड चैप्टर, नॉट कर्मयोग। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, तू लड़, फल की अपेक्षा मत कर। माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त अकर्मणि, साक्षी भाव में आकर लड़। भगवान कहते हैं योगस्थ गुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अपने योग में समत्व के योग में आके तू अपना कर्म कर। सिद्धयो समोवत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख के ऐसा अगर तू करेगा तो वही योग है, समत्व ही योग है। भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। इस तरह भगवान ने जब बातें की तो अर्जुन पूछते हैं कि ये स्थित प्रज्ञता वाली बात मुझे जरा समझाइए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितधीर किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजते। स्थित प्रज्ञा अवस्था क्या होती है? स्थित प्रज्ञा वाला इंसान जो अपने साक्षी भाव में आ गया वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे सोता है, मुझे जरा समझाने की कोशिश करो। तो भगवान तुरंत कहते हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदो। सी वही जो बात बुद्ध ने कही, प्रजाति यदा कामान, जिसकी सब कामनाएं चली गई जो इच्छा रहित हो गए। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उद्भवती सभी कामना से जिसकी मुक्ति हो गई है, जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जो अपने आत्मा में ही रममाण है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता है। और फिर भगवान कहते दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृहो वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेशु अनुद्विग्ध मना, जो दुख से बहुत चलायमान नहीं हो जाता है, और सुख से वो विगत स्पृह रहता है। सुख से भी लोग चलायमान हो जाते हैं, क्योंकि सुख भी एक आंदोलन है, दुख भी एक आंदोलन है। लेकिन जो दोनों आंदोलन से जो परे हो जाता है और अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए, वितराग भय क्रोध, जिसके राग अटैचमेंट भय और क्रोध चले गए, स्थित धीर मुनिरुच्यते। हमारा भय भी जो है वो हमारी माया के कारण है। भय क्यों है? कोई मुझे मार डालेगा, उसका मतलब क्या है कि मुझे मेरे शरीर से अटैचमेंट है, तभी भय। अगर मेरे शरीर से मुझे भय अटैचमेंट नहीं है तो मुझे कोई भय नहीं मैं अगर कहूँगा भगवान जो करेगा ठीक है, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं, मरना है तो मरेंगे तो भगवान कहते हैं वितराग भय क्रोध। और फिर भगवान ही गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, यदा संवरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोच लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञा इंसान इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, क्योंकि उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको कोई कामना नहीं है, उसको कोई वासना नहीं कि ये मिला तो ठीक, ये ना मिला तो ठीक है, ठीक है मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो भगवान गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ टर्टल, कछुए का एग्जांपल। और भगवान इस तरह कहते हैं कि then he explains in 4 श्लोक्स साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, साइकोलॉजी ऑफ काम वासना, कि विषयों का चिंतन करती ध्यायता विषयान पुरुष संगस्तेषु प्रजाते, उसके साथ आसक्ति हो जाती। आप विषयों का ध्यान करते हो तो उसके पीछे आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते काम, संग दोष से फिर कामना का उद्भव होता है। कामात क्रोधो भी जाते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब कामना है। अगर वो उस जगह में $100 पड़े हैं और मुझे कामना होगी कि मैं लेके आऊँ, अगर मेरे उठने से पहले आप जाके लेके आए तो मुझे क्रोध होगा क्यों? मेरी कामना थी इसलिए क्रोध हो गया। या $50 मुझे मिल गया, $50 आपको मिल गया, तो हम दोनों को क्रोध होगा, क्योंकि मेरी कामना थी $100 पाने की, आपकी भी कामना थी 100, लेकिन आपको 50 मिला, मेरे को भी, तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। तो भगवान के संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध के कारण मन धुआं धुआं जो सम्मोहन होता है। सम्मोहन का मन मतलब इतना है कि तुम्हारा आत्मस्वरूप आप भूल जाते हो, आप तो चिदानंद स्वरूप है, आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका मन क्रोधित हो गया, धुआं धुआं हो गया। धुएं से आपका अग्नि जो है ढक गया है, आपकी आत्मा की जो प्रज्वलित अग्नि है
वो धुएं के कारण ढक जाती है, क्रोध के कारण ढक जाती है। इसलिए आप अपनी आत्मा को ऊपर, फिर क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। तुम्हारी स्मृति कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ वो चली जाती है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, उसकी जो योग बुद्धि जो है, उसकी जो अल्टीमेट इंटेलिजेंस जो है वो चली जाती है, और बुद्धिनाश प्रणश्यति, उसका विनाश होता है। यानी जन्मों जन्म संसार का चक्कर उसका चलता रहता है कामना के कारण। फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जननी, इस जठरे सनम, बार बार जन्म होता रहता है, होता रहता है। अपने ही मायाजाल में फंसा हुआ इंसान कहता है, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में कि उसको मैं बार बार अधम योनि में फिर डालता हूँ, वो जन्मता है। माम अप्राप्येव गमतये मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माया में फंसा हुआ इंसान अपने ही जाल में फिर से बार बार जन्म लेता रहता है, और कभी उसकी मुक्ति नहीं होती। तो भगवान इस तरह उन्होंने बहुत ठीक तरह से साक्षी भाव क्या है, स्थित प्रज्ञता क्या है, अनासक्ति क्या है, वितरागता क्या है, बुद्ध की उपेक्षा क्या है, उसके बारे में भगवान ने समझा। फिर भगवान ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। इस माया के जंगल में सभी लोग सोए पड़े हुए इस माया के जंगल में सारा संसार सोया पड़ा है, लेकिन उसी रात्रि में योगी जागता है, क्योंकि वो माया से मुक्त है। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है वो योगी के लिए जागृति है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा, जिस माया के जंगल में इंसान जाग के भागा दौड़ा करते, वहाँ साक्षी भाव में रह के योगी सा निशा पश्यतो मुनि, ही जस्ट ऑब्जर्व्स थिंग्स, अवेयरनेस में रहता है। ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, होने दो, मैं तो अपना आत्मस्वरूप। वही बात लक्ष्मण जी ने रामायण में दोहराई है कि मोह निशा सब सोवनहारा, सारा संसार ये मोह की रात्रि में सोया है। मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रवाह, अपने सब संसार के प्लान, सब संसार के सपने चलते रहते। मोह निशा सब सोहनारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, इमी जगह जामिनी जाग ही जोगी। इस सब संसार की निद्रा में एक योगी ही जागता है। परमार्थी प्रपंच योगी, जो प्रपंच से योगी है और परमार्थ में है, वो योगी जागा। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण कि जान ही जीव जग जागा, तभी इंसान को जागा हुआ समझना चाहिए। जब सब विषय विलास विराग, जो विषय और वासना से जब इंसान मुक्त होता है तभी ही वो जागा हुआ है, तब तक वो सोया हुआ ही ऐसा मानना। See, he said only those who are away from काम वासना are awakened people, but most of the people are asleep. भगवान कहते हैं जब तक ये काम वासना और विषय से मुक्ति, तब तक रघुपति चरण में अपना अनुराग होता नहीं। जब तक कामना और विषय से इंसान मुक्त नहीं हो, तब तक सोया पड़ा है, और तब तक रघुपति के चरण में उसकी अनुराग होती नहीं। भगवान लक्ष्मण ने भी बात, जॉर्ज गुरजियफ was one of the mistake in Eastern Europe, he also said the same thing. The whole world is sleeping. The greatest mathematician of our time, Ouspensky, he questioned him, what do you mean by whole world is not sleeping? While you are talking, I am awake. While you are talking, everybody is awake. The whole world is awake. People are not sleeping. He said, wait a moment. A day will come by when you spend time with me. तूने मुझे अगर गुरु माना है तो मेरे साथ जस्ट गुरु के चरणों में निपट रहना, बैठे रहो यहाँ। एक दिन तुम्हें ज्ञान होगा कि सारा जगत सोया हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ, ऑस्पेंस्की was taken into total silence. मौन अवस्था में उसका गुरु उसको लेके गया। Then he understood. Then he came out and said, now I understood. Now I understand. जब मैंने मौन का अनुभव किया तब मुझे पता चला, हाँ मैं भी सोया था और सारा जगत अभी तक सोया हुआ है। तो भगवान ने कहा पूरा जगत सोया हुआ है, जब तक आपकी आसक्ति है, माया का विस्तार है, तब आप सोए पड़े हो। और नारद जी भी कहते कि मनुष्य अपने ही घर में अपनी माया का कारागृह भुगतता है। Nobody is sentencing you to imprisonment. You are sentencing your own self into your own house, and that is against another imprisonment, because we are attached to our own houses. तो भगवान ने ये सब बातें बताई, and then he said,
ये जो आत्मा की अवस्था है, परमात्मा की अवस्था, भगवान कहते येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम् उच्यते। हे अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञता की जो अवस्था है, आसक्ति से परे की जो अवस्था है, ये जो साक्षी भाव है, ये आत्मा का जो स्वभाव, ये जो जान लेना है, ये जो बुद्ध की उपेक्षा है, महावीर की विद्या, ये ब्रह्म की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, और अगर तू इसमें आ जाएगा तो नैनम प्राप्य भी, इस अवस्था में आ जाने के बाद तुझे कोई माया के बंधन में फिर से खींच नहीं पाएगा। एक बार योगी जब आत्मज्ञान में आता है, उसको माया खींच नहीं पाती है। और भगवान के स्थित्वा अस्य अंतकाल, भी इस तरह अपने अंतकाल तक, मृत्यु पर्यंत इस तरह रह में अगर तू रहेगा तो ब्रह्म निर्वाण में, तुझे ब्रह्म और निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण गेव द अल्टीमेट इन द वेरी सेकंड चैप्टर कि अभी कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर तू स्थित प्रज्ञावस्था में आ गया, तूने अपने आत्मा को समझ लिया, तो दिस इज द अल्टीमेट, ब्रह्म निर्वाण हो गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, ये ब्रह्म की ही स्थिति है, और कुछ करना नहीं है। तो भगवान ने इस तरह दूसरा अध्याय किया था। There are 71 verses. Today we have summarized chapter 1 and 2. In the next session, I will summarize chapter 3. And then we'll go to chapter 4, slope by slope again. Okay? And even after concluding chapter 4, we'll re-summarize chapter 4. Otherwise, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी माया इतनी है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। कल गीता का श्लोक क्या पढ़ा वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन 30 साल पर सासू ने कौन सा कटु वचन कहा तो अभी तक याद है, क्योंकि हमारी माया सम्मोहन हो जाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई हम रीसमराइज।